when we sit here, what state of mind I am sitting here. Then only I can absorb everything. It's like a vessel with the holes. If my mind is not prepared, if my mind is not stable and settled, then automatically जब भोजन के लिए बैठे तो सभी बाजू में जिनके भी साथ में बैठे थे सभी के थाली में 56 प्रकार के भोग रखे गए, 36 वेराइटीज ऑफ भोजन. स्वर्ग में ऐसे ही चलता है ना. तो हर एक के थाली में इतने प्रकार के भोजन व्यंजन, बहुत टेस्टी डेलिशियस फूड वाज देयर. वेरएज कर्ण के थाली में क्या था कि सोना, रतन, हीरे, जौहर ये सब थे. तो उनको डाउट आया कि मैं ये कैसे खाऊं. कोई खा सकता है ये सब? सोना खा सकते हैं कोई? Om Shanti. A very good evening and a warm welcome to today's refreshing Sunday evening talk. So, a hearty welcome to all those who have taken out time today. And it's a very beautiful and wonderful evening, and the session is going to be equally refreshing. So, may I know how many of you are here for the first time? First time? Yes. So, special welcome to you. And for the benefit of those who have joined us for the first time, let me give a brief about what we do here at Shanti Sarovar. So, Brahma Kumaris is a worldwide socio-spiritual organization spread across 110 countries with over 5,000 branches. And it has one goal: to uplift individuals through spiritual tools, through the practice of Raj Yoga meditation, hence contributing to the upliftment of the society. And there is just one aim that we follow: self-transformation for world renewal. And the campus that you are sitting in, it is one of the biggest retreat centers of Brahma Kumaris. I may add, it is the largest so in southern India. Spread across 33 acres, Shanti Sarovar has been serving this IT hub of Hyderabad since over 20 years now. And it has been rendering services across the sectors, welcoming everyone and giving that space of peace and space of warmth and space of love to whoever comes here. And this particular series that you have joined today, it's a regular feature of Brahma Kumari's Shanti Sarovar Center. It's a weekly series known as Refreshing Sunday Evening Talk, offering multiple topics, workshops, sessions, meditation experience through light-hearted sessions. So we take you on a journey, and give you a chance to experience meditation and also experience deeper aspects of topics we kind of take granted for these days, which, for example, is our today's topic, which is Pitra Paksh Shraddh, a spiritual perspective. So as in India we head into the different festivals, so this is the main period which kind of preludes that period of celebrations. It's to remember our ancestors. But we kind of get sometimes more absorbed in the rituals. Today we'll try to learn what those rituals signify and how to make them more meaningful in our life as we practice them. To take us on this journey, let us welcome on stage our today's speaker, Brahma Kumari Sister Vasanta. With a warm applause, let us welcome her on stage. Till she takes her seat, she specially requested for a very small introduction, so I'll take that duration to introduce her. She's a senior faculty of Brahma Kumaris. She has traveled across the globe and serving in different countries. Prior to dedicating her life around 30 years ago to this spiritual and godly university, she was serving as a lecturer in different educational institutes, has done her MPhil in English, MBA, and various other degrees. But then she dedicated her life for this spiritual service. She was also serving in different countries like West Indies, Southern Americas, and UK, Australia. And the key highlight was her services across sectors
gave her the honor of Peace Ambassador Award and the Ambassador of Peace by the government of Guyana while she was serving there. So with this, we give the stage to Didi to take us on a journey of spiritual perspective of the Pitra Paksh Shraddh. ओम शांति। परमात्मा को याद करेंगे। पहले शांति से बैठे, अपने मन को सब बातों से, कार्यों से उपराम डिटैच करके थोड़े समय के लिए अपनी उन्नति के लिए बैठेंगे। अपने आप को याद दिलाए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अपने आप को एक चमकता हुआ सूक्ष्म सितारे के रूप में देखिए। और ये समय मुझ आत्मा की उन्नति के लिए है और मैं आत्मा परमात्मा पिता के सानिध्य में अपने आप को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। यहाँ का जो वातावरण है, वाइब्रेशंस है, इसको अपने अंदर भी भरकर मैं बहुत सशक्त महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, निश्चल, स्थिर होती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। शांति। शांत है आप सभी? स्थिर? मन कैसा लग रहा है अभी? जिस मनोस्थिति से आप यहाँ पर आए और यहाँ का वातावरण और आप जो अभ्यास किया उससे थोड़ा डिफरेंस महसूस करते हैं? सभी का ऐसा लगता है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी सिट हियर, what state of mind I am sitting here. Then only I can absorb everything. It's like a vessel with the holes.
if my mind is not prepared, if my mind is not stable and settled, then automatically बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे पात्र में डालने से फिर पूरा बह जाता है, खाली हो जाती है ना। इसीलिए मन को भी बहुत स्थिर शांत करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो जो बातें हैं वो अंदर बैठता है ना। इसलिए जब भी आप आते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री चलती है या आपको ऐसे गाइडेड मेडिटेशन थ्रू रखा जाता है, क्योंकि तभी अब्जॉर्प्शन रहता है, राइट। तो जैसे लवनीत बहन ने बताया, बहुत स्पेशल टाइम में अपने हिंदू कैलेंडर में है इस समय, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। तो 1 हफ्ता हो गया शुरू होके भी, तो आप सब भी कुछ इसके बारे में चिंतन भी करते होंगे और कुछ कर भी रहे होंगे, हाँ। तो आज हम सिर्फ ये क्यों मना रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें मुझे क्या करना है ये सीखेंगे। दैट्स वाई इट्स अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिक पार्ट अलोन, ठीक है, हाँ। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं है। तो करने से भी फ़ायदा इतना नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है और कैसे मनाना है कुछ नहीं मालूम। मैं हमेशा फेस्टिवल्स में कहती हूँ कि जो भी फेस्टिवल्स होता है, हाँ, उमंग उत्साह में लाने के लिए, लेकिन उमंग उत्साह गया, फिर अभी सिर्फ चिंता ही रह गई है हर फेस्टिवल का, क्योंकि काम बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली मनोस्थिति चेंज हो गई। लेकिन ये पक्ष में कोई भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खर्चा करते भी है तो किस लिए, वो आज हम देखेंगे। तो पितृपक्ष श्राद्ध, ये जो श्राद्ध का शब्द आया है, श्रद्धा, श्रद्धांजलि, ये शब्द से श्राद्ध आया है। तो श्रद्धा से कर रहे हैं। भाद्रपद मास के जो अभी का पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष, उसमें ये पौर्णमी से लेके अमावस्या तक जो मनाने वाले 16 दिन हैं, इसको महालया पक्ष या पितृपक्ष कहते हैं। तो ये बहुत इस बार तो और भी स्पेशल है, इसलिए कहते हैं कि लास्ट संडे को हम मेंशन भी किए थे कि चंद्र ग्रहण है। उस दिन प्रसाद भी नहीं दिया किसी को, याद है, जो भी आए थे प्रसाद भी नहीं दिया था, क्योंकि शुरू हुआ, हाँ, ग्रहण से। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण से, और ख़त्म होगा 21 को, नेक्स्ट संडे, सूर्य ग्रहण से। तो उस दिन भी ग्रहण है। तो एक्चुअली ग्रहण माना ही बहुत ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। तो दान पुण्य भी करते हैं, जप करते हैं, उस इतने टाइम जो है अपने मन को कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर एंगेज करते हैं, क्योंकि जो ग्रहों का या विश्व में जो भी एनर्जी घूम रही है उस समय बहुत हाईएस्ट एनर्जी है। तो उसमें अपने आप को अलाइन करके वो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ये सब हमको पहले से भी सिखाया है। लेकिन आज क्या है कि हम हर चीज़ के लिए साइंटिफिक रूप में ही देख रहे हैं। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब साइंटिफिक ही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, कि ऐसे भी क्यों करना है। हाँ, बहुत सारे प्रश्न। इसीलिए आज फर्स्ट टाइम हम संडे टॉक में, आई थिंक सेकेंड टाइम, ये खास ये टॉपिक रखा है कि सभी को मालूम पड़े कि अपनी जो संस्कृति है या जो धर्म में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों मनाते हैं करके। इसमें कोई अंधश्रद्धा या रिलीजियस की बात नहीं करने जा रहे हैं हम। जो भी कर रहे हैं क्या है इसका मीनिंग, ये समझने जा रहे हैं। तो श्राद्ध जो है उसका अगर हम और भी डीप में जाए, इस शब्द का अर्थ है
सत्य प्लस आधार, सत्य प्लस आधार इक्वल्स टू श्राद्ध। तो सत्य माना क्या है? सत्य किसको कहते हैं? सत्य माना एक परमात्मा है। सत्य माना जो हमेशा रहने वाला है ना। सत्य माना क्या कहते हैं? आप सत्य बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं क्या, इसका मतलब वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं है ना। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं है, इट इज़ एज इट इज़, दैट इज़ व्हाट ट्रूथ। सो सच, सत्य आधार, सत्य माना परमात्मा, जो कभी भी उनमें मिलावट नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रभावित नहीं होते हैं या किसी भी कर्म का प्रभावित नहीं होते हैं, इसीलिए परमात्मा को सत्य, सत्य या सत्य कहा जाता है। सत्य प्लस आधार मतलब ये समय ऐसा है कि ये एक परमात्मा का आधार लेके चलने वाला समय, इसलिए इसको सत्य आधार श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि श्राद्ध में ऐसी अच्छी टाइम नहीं है, राइट। हाँ, जो शुभ कार्य होता है वो कुछ करते नहीं है, गृह प्रवेश हो, शादी हो या और कुछ चीज़ें हैं, ये सब नहीं करते हैं। लेकिन बहुत ये भी ऑस्पिशियस टाइम है, किस रीति से कि ये अपने लिए टाइम है, खुद के लिए जो करना है वो करने का समय ये है। जो भी इस समय हम करते हैं खुद के लिए कर रहे हैं। पितृमना, पितृमना क्या है? एंसेस्टर्स। और एक्चुअली देखा जाए तो पितृमना आत्मा, तो खुद की आत्मा के लिए भी कर रहे हैं अभी जो भी करते हैं, और जो मेरे पूर्वज आत्माएं हैं घर में, एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए भी करने का ये समय है। तो हम एक कहानी से शुरू करते हैं कि क्यों ऐसा ये सब करना है, इसका क्या रिलेवेंस है। तो एक बार कहते हैं कि कर्ण, सभी जानते हैं ना कर्ण को? है कोई नहीं जानने वाले? नहीं है। अपने पास जो आने वाले क्राउड है थोड़ा सा तो मालूम है। तो कर्ण को दानी भी कहते हैं, वीरत्व भी है, शौर भी है, ऐसा कर्ण, दान वीर शौर कर्ण कहते हैं। तो कर्ण जब शरीर छोड़ दिया तो वो गए स्वर्गलोक में गए, तो भोजन के लिए बिठाए उनको। जब भोजन के लिए बैठे तो सभी बाजू में जिनके भी साथ में बैठे थे सभी के थाली में 56 प्रकार के भोग रखे गए, 36 वैरायटीज ऑफ भोजन। स्वर्ग में ऐसे ही चलता है ना। तो हर एक के थाली में इतने प्रकार के भोजन, व्यंजन, बहुत टेस्टी डेलिशियस फूड वाज देयर। वेरएज कर्ण के थाली में क्या था कि सोना, रतन, हीरे, जौहर, ये सब थे। तो उनको डाउट आया कि मैं ये कैसे खाऊं? कोई खा सकता है ये सब? सोना खा सकते हैं कोई? कितना भी हो, नहीं खा सकते हैं। तो उन्होंने जाके इंद्र से पूछा कि देवराज जी, आप सभी को इतने प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, लेकिन भला क्यों कर्ण को ये सब रखा है थाली में? तो उन्होंने बताया कि जो आपने नीचे किया था वही आपको मिलेगा। हाँ, जो आप नीचे किए थे वही मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नीचे क्या किया? मेरा तो दान वीर शूर कर्ण, मेरा दान का तो इतना नाम है, तो मेरे को क्यों रखा? तो आप दान यही का किया था, इसी का किया था, तो जो दान किया वही आपको फल में मिल रहा है। तो एकदम चौंक गए कि मैंने तो कभी भोजन का, अन्न का तो किया ही नहीं। हमेशा सभी को हाँ मेरा नाम बहुत अच्छा हो तो सोना चांदी यही तो दिए थे, तो ये तो मैं खा नहीं सकता।
फिर कैसे? फिर उन्होंने पूछा मैं क्या करूँ इसके लिए, ये तो जैसे श्राप है मेरे लिए। तो बोला कि अभी नीचे मतलब भूलोक में जो है बहुत अच्छा समय चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है इसी के उपलक्ष्य में, तो आप नीचे जाओ, आपको 15 दिन टाइम मिलेंगे और आप जाके जो करना है, जो पाना है वो करके आओ, फिर आपको मिलेगा। तो नीचे आए, फिर 15 दिन बहुत खूब दान किए, लेकिन इस बार अन्न का भी दान किया। वो सब करके गए करके, ये कथा है एक। मतलब मैं कथा को ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसकी जो सीख है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे हम। तो पितृपक्ष में जो हम कर रहे हैं वो हमको मिलेगा, या मेरे जो पूर्वज हैं उनके लिए, उनकी शांति के लिए वो सब कर रहे हैं। जब मैं ये सोचती हूँ, एक तो हम भारत में कर्म का फिलॉसफी कहते हैं, जो करेंगे सो पाएंगे, है ना। इसमें जो हम कर्म करते वही मैं पाती हूँ, और अगर मैं करूँ और मेरे माता पिता पाए, होगा। अगर मैं कर रही हूँ कुछ गलतियाँ, उसकी सज़ा मेरे माता पिता खाए, जो भी आप करें वो मिलेगा उन लोगों को। तो कर्म के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है इसका, तो समझ रहे हैं आप। तो जो भी है, मैं इसीलिए इस टॉपिक पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे लिए जो कर्म करूँ मैं ठीक करूँ, मेरे पूर्वजों के लिए जो भी मिलेगा वो ठीक है, लेकिन मैं खुद के लिए जो कर्म कर रही हूँ वो ठीक रखूँ, ताकि मेरे थाली में जो परोसा जाएगा फिर बाद में उसमें मैं ही खाऊंगी ना, मेरे पूर्वज आके नहीं खाएंगे, वो तो मैं ही खाऊंगी। तो खुद के लिए जो मैंने शुरुआत में भी बोला वही सत्य आधार, खुद के जो जीवन है वो परमात्मा के आधार से चलाने के लिए ये समय है। उस रीति से दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस, दिस इज़ वेरी स्पेशल इन होल 1 ईयर्स कैलेंडर। सो ये 15 दिन जो है हम क्या क्या करते हैं वो सब देखते हैं, उसका स्पिरिचुअल अर्थ भी सीखते हैं। तो आत्माओं का जो है, हमारे पूर्वजों का, पुरख जो बोलते हैं पूर्वजों का, उनकी जो छाया है मेरे ऊपर पड़ा है हमेशा। अभी जो हम कहते हैं यूजुअली भी पूरे दिन में हम जो भी करते हैं, कोई अच्छा हमको बोले तो हम क्या करते, मेरा कुछ नहीं है, हमारे जो पूर्वज है उन लोगों की ही भिक्षा है मेरे लिए, है ना। जो सरनेम हम कहते हैं, जो पूर्वजों से मिला हुआ है उसको ठीक रखे, इसके लिए ही सोचते हैं। आप भी आपके बच्चों के लिए कुछ भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा नाम बदनाम करने जैसा कुछ काम नहीं करो। मतलब जो भी हम कर रहे हैं पूर्वजों से, मतलब मेरे माता पिता या उनसे भी पूर्वज, उनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आत्मा का एक्चुअली उनके साथ कनेक्शन है। तो मैं जो भी कर रही हूँ, हाँ मेरे लिए भी कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं उनसे भी कर्म से मैं जुड़ी हुई हूँ। आत्मा जुड़ा है ना उनके साथ भी, तभी तो उनके पास जन्म लिया, तभी तो उस घर में मैं पैदा हुई, या तभी तो उनके साथ कनेक्शन में आई, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब है। तो ये समय है जो कर्म का हिसाब किताब रहा हुआ है उसको ख़त्म करने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा को जो भी ये हिसाब किताब रहता है वो, हाँ वो तो कभी आप हैं, आप माँ बाप हैं, तो कभी आपके बच्चों को नेगेटिव कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते, कैसे भी हो वो कितना भाई बुरा कर्म करे, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे ऐसे हो जाए। सोचते हैं कोई माँ बाप ऐसे सोचते हैं? कोई नहीं सोचते हैं ना। तो फिर वो पूर्वज बन गए, शरीर छोड़ दिए, फिर क्यों आपको कोसते हैं वो लोग? मीनिंग है क्या इसमें?
वो चले भी गए, शरीर से भी चले गए, फिर उसके बाद आपके लिए क्यों नेगेटिव वो लोग सोचेंगे, क्यों आपको श्राप देंगे। देख रही हूँ, कहाँ भी खोलूँ तो कुछ भी नेट में हर जगह पर यही एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ये 15 दिन का। आप ये मैसेज 7 सितंबर के पहले या उसके बाद देखेंगे तो ये करने के लिए आपके पूर्वज बोल रहे हैं, ये करने के लिए, ये दोष है आपका, पितृदोष है आपके ऊपर जो भी है, इससे छुटकारा पाने के लिए ये करो, ये करो। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह पर, हाँ है ना, आप भी देखा है। तो सही में कुछ दोष शब्द है क्या उनसे मेरे ऊपर चला है, आप सोच ही नहीं सकते। जीवित हैं तो जाने के बाद भी मेरे लिए मेरे बड़े नेगेटिव सोचे, ये कैसे हो सकता है। मतलब सोचने के लिए मैं कुछ विचार दे रही हूँ ताकि हम वो चीज़ से थोड़ा सा बाहर आए और अपने लिए जो करना है वो करें। पितृदोष या किसी की उन्नति नहीं हो रही है, या घर में कलह क्लेश लगे हैं, या बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए आजकल कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ आपके ऊपर पितृदोष लगा है। मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ें आते हैं, बात करते हैं। हम तो आपके जैसे लोगों से ही सुनते, सिस्टर मेरे ऊपर ये दोष है, वो दोष है, मैं क्या करूँ, वो क्या करूँ। तो यहाँ पर हम क्या समझे हैं, क्या सीखे हैं परमात्मा के द्वारा कि हमारा जो कर्म है वो ठीक रखो। जो मैं अभी हिसाब किताब देख रही हूँ वो पिछले कर्म का हिसाब किताब देख रही हूँ। जो मैं अभी करूँगी तो इसका जो फल जो है इसी जन्म में भी और नेक्स्ट जन्म में भी जाएगा। तो मेरे कर्म अभी तो ठीक रखे एटलीस्ट, पुराना तो मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर जो है ठीक रखने के लिए ये समय हमको एक संदेश दे रहा है ना। मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस। जो सुन रहे हैं ठीक है, ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है सभी को। तो पितृपक्ष में मुख्य रीति से 3 ऋण चुकाने के लिए कहा गया है, शास्त्रों में भी है। और 3 ऋण के बारे में हम देखते हैं। एक तो पितृ ऋण, जो चुकाने के लिए अभी श्राद्ध में पितृपक्ष में सब कुछ करते हैं, पितृ ऋण। ये पितृ कौन है, मेरे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स है, जो माता पिता है या उनके भी जो पूर्वज है, वो सबके माता पिता। हर ट्रेडिशन में देखो तो उनको बहुत बड़ी रीति से मानते हैं कि नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे उनके कुछ रिचुअल्स है या उनकी संस्कृति है जिससे प्रतीत होता है कि वो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बातें सुनी हूँ, देखा भी है, उनके लिए कुछ स्थान बना के उनको याद करने का। तो हर घर में भी बड़ों का जो चित्र भी लगा है वो सब। तो सिर्फ यही नहीं है कि उनको ये 15 दिन ठीक रखो, याद करो, फिर बाद में ये नहीं। लेकिन जब जीवित है उनको खाना नहीं खिलाया, फिर जाने के बाद पितृपक्ष में खाना खिलाए उनके नाम से, वो कितना रिलेवेंट है। जब जीवित है, जब खाते थे उस समय नहीं खिलाया, वो जाने के बाद उनके नाम से अन्नदान कर रहे हैं, दोष निवारण करने के लिए वो भी है। मतलब मेरे को जब ऐसे सुनती हूँ ना अच्छा नहीं लगता। जब थे उनको कितना कदर किया, कितने ओल्ड एज होम बढ़ गए हैं जी। कैसे सुधरेंगे, अभी भी वही मैं बोल रही हूँ, वो सुधरने के लिए भी नहीं, उनका दोष मेरे ऊपर जो है वो जाने के लिए मैं अन्नदान कर रही हूँ। इधर भी मेरा ही मतलब है या नहीं, स्वार्थी है या नहीं, हाँ। उनका दोष जो है मेरे ऊपर ना रहे, दोष निवारण के लिए अन्नदान करो,
और वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया और मैं करने लग पड़ी। इसलिए मैंने बोला वो जो गए हैं उनके लिए जो करने से उससे ज़्यादा मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, ये है ये टाइम। हर चीज़ में देखो तो आपको यही अंडरलाइन पॉइंट मिलता है लास्ट में, मैं क्या कर रही हूँ अभी, कैसे जीना है मुझे, ये सिखाने के लिए मिला है ये टाइम। ये श्रद्धा है एक्चुअली, बड़ों के प्रति जो श्रद्धा है वो जब है तब उनको अच्छे से संभालो। तो फर्स्ट ऋण जो चुकाना है एक्चुअली हर एक को, पितृ ऋण। तो पितृ ऋण क्या है कि वो कैसे हम चुका सकते हैं? माता पिता का तो ऋण कभी नहीं चुका सकते, कितना उन्होंने किया, कभी बोला भी नहीं है बहुत लोगों ने, और कितना भी बोले तो आप जब बच्चे पैदा करते हैं तब मालूम पड़ता आपके माता पिता आपको कितना किया है या नहीं। जब आपको सेवा करनी पड़ती है उनके बच्चों की तब मालूम पड़ता है कि मेरे माता पिता भी कितना किया था मेरे लिए। तो पितृ ऋण चुकाने के लिए भक्ति में हमको एक मार्ग भी दिखाया, वो है सेवा। जो भी सेवा करते हैं आप, धन रूप से सेवा करना चाहते हैं, अभी जो अन्नदान करते हैं या एजुकेशन के लिए किसी को अडॉप्ट करते हैं आप पैसा देते हैं, या किसी को मेडिकल के लिए पैसा देते हैं, या हॉस्पिटल स्कूल खोलते हैं, ये सब जो भी करते हैं ये सब दान ही है। मेरे पितरों को मालूम पड़ेगा या उनको मिलेगा या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को तो अच्छा कर्म जमा होगा, जो किया वो ही मिलेगा। मैं अगर हॉस्पिटल की सेवा में मैंने पैसा दिया या मेरा शारीरिक शक्ति यूज़ किया तो उसका फल मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी। ये कर्म का हिसाब किताब है, जिसमें आपने आपका तन मन धन लगाया वही आपको मिलेगा। शरीर से जो भी किया है उसका भी प्राप्ति होगी। तो अगर मैं एजुकेशन के लिए पैसा दिया तो मेरी बुद्धि ठीक रहेगी नेक्स्ट बर्थ में। अगर मैं अन्नदान के लिए पैसा दिया तो मेरा भोजन की कमी कभी नहीं पड़ेगी नेक्स्ट लाइफ टाइम में। तो हर चीज़ का हिसाब किताब बताया है। इसलिए इस समय दान का महत्व है, हर चीज़ का दान करते हैं, सिर्फ अन्नदान ही नहीं, हर चीज़ का दान करते हैं। तो पितृ ऋण चुकाने के लिए दान करो, मतलब अपना जो श्रेष्ठ भाग्य है, फ्यूचर है, उसको ठीक रखने के लिए दान करो। वो है फर्स्ट ऋण, पितृ ऋण। और दूसरा ऋण होता है देव ऋण। मतलब पितृ ऋण के लिए, मतलब भक्ति में देखो कितने सारे मीनिंगफुल बातें बताए हैं। ये ऋण चुकाने के लिए 3 लोगों को दिखाया। फर्स्ट है ब्रह्मा देवता को दिखाया। तो ब्रह्मा माना पितृ ऋण का मतलब मेरा माता पिता जो भी है वो भी मेरे लिए ब्रह्मा ही है, सृजन किया है, मेरा सृजन हुआ है या मेरा भाग्य का सृजन किया है। तो उनका ऋण चुकाने के लिए ब्रह्मा के लिए कहा जाता है वो आप सेवा करो, पितृ ऋण चुकाने के लिए। फिर दूसरा है देव ऋण, मतलब माता पिता लेकिन फिर परवरिश करने के लिए। विष्णु को क्या कहते हैं? पालन करता, पालना करने वाला। ब्रह्मा है सृजन करने वाला, विष्णु है पालन करने वाला। तो विष्णु को दिखाया कि देव ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि सभी देवताओं के अग्रज है, विष्णु को दिखाया। तो विष्णु को दिखाया और वो ऋण से मुक्त होने के लिए, देव ऋण से, जो अपने क्या कहते हैं, अपने इष्ट देव रहते हैं या आपके घर के भी देवी देवता रहते हैं ना, जैसे कुल देवता कहते हैं, तेलुगुलो అయితే ఇలవేల్పు ఇంటి ఇలవేల్పు అని అంటాం। तो उनको भी बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, उनको भी सब कुछ अर्पण करते हैं। तो अपना ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि उनके भी आशीर्वाद से मैं पल रही हूँ अपने जीवन में, तो वो ऋण चुकाने के लिए कहा गया है कि दान करो। फर्स्ट है सेवा करो पितृ ऋण के लिए, और देव ऋण के लिए दान करो बोला है।
तो वो भी है। और तीसरा है ऋषि ऋण, हर एक को चुकाना है ऋषि ऋण। मतलब ऋषि माना नॉट ओनली सिर्फ ऋषि मुनि या साधु सन्यासी, लेकिन ज्ञान देने वाले, ये है ऋषि ऋण। तो ज्ञान माना ही वो प्रकाश है, अंधकार से आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाले। जो भी ऐसे मेरे को प्रकाश में ले जाने वाले या जो भी ऐसे ज्ञान की बातें हैं वो सुनाने वाले सब ऋषि ही है। आप यहाँ पर आए, कुछ सीखा, तो यहाँ परमात्मा से हम सीख रहे हैं ना, राइट? तो उनको शंकर के रूप में दिखाया है। तो ऋषि ऋण के लिए कहा है कि वो चुकाने के लिए आपको और ज्ञान बांटना है। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया मेरे लिए, मेरी उन्नति के लिए, वो दूसरों को भी जितना बांटेंगे उतना वो ऋण से मुक्त होंगे। क्योंकि जो देंगे वो ही पाएंगे। खुशी देंगे तो खुशी पाएंगे, ज्ञान देंगे तो ज्ञान पाएंगे, रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट पाएंगे। अगर मैं गुस्सा देंगे तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। अथॉरिटी है ना मेरे पास, हाँ, गुस्सा दो नहीं, गुस्सा ही मिलेगा। जो देंगे वो ही मिलेगा। तो ज्ञान लिया है तो ऋषि ऋण को कैसे काटना है कि उसके लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सेवा में लगो। तो ये 3 ऋण जो है हर एक को चुकाना है। और इसके लिए कहते हैं कि और एक कहानी है, बहुत प्रचलित कहानी, लेकिन बहुत कम ही सुना है, शास्त्रों की कहानी है ये। पहले कहानी सुनेंगे, उसका भावार्थ शब्दार्थ बाद में हम सीखेंगे। तो एक महान पुरुष था, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम है उनका? आत्मदेव। तो आत्मदेव जो थे बहुत साधु पुंगज थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, बहुत अच्छा नियम मर्यादाएं या सभी को दान सेवा करने का जो व्यक्तित्व था ऐसा था। उनकी युगल वाइफ थी धुंधली, उनका नाम था धुंधली। तो आत्मदेव और धुंधली दोनों का शादी हुआ था, लेकिन जो है उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत समय से बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत दुखी हो गए। तो ये आत्मदेव जा रहा था कहीं जाके, वो इतना दुखी हो गया था कि मेरे बच्चे कोई नहीं है, मेरा वंश नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूं? जाके मरने के लिए सोच रहे थे, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तभी एक नदी के सामने जा रहे थे, तो एक ऋषि पुंगव वहाँ स्नान करके बाहर आए। तो आत्मदेव को देखा, वत्स क्यों आप इतना परेशान दिख रहे हो, इतना दुखी क्यों रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, साधु महात्मा, मेरे लिए जीवन में सब कुछ है, लेकिन मुझे बच्चे नहीं है, इसीलिए मैं इतने दुखी हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तपोशक्ति से आपको एक फल देता हूँ, वो फल जाके आपके पत्नी को दे दो, वो स्वीकार करने के बाद उनको बच्चे पैदा होंगे। बहुत खुशी से लिया उन्होंने, और उनके युगल जो है, पत्नी जो है, उनके पास गए घर में, और उनको बहुत खुशी से ये फल दिया, ये खाने से आपको बच्चे पैदा होंगे, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ये उनका वाइफ का नाम क्या था? हाँ, धुंधली। तो धुंधली ऐसी थी, आत्मदेव का पूरा ऑपोजिट। ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला, और ये सभी को दुख देने वाली, और बहुत कॉन्शियसनेस में थी, देह भान में बहुत ज़्यादा थी, और उनका हेल्थ कॉन्शियस या ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा। शरीर को कुछ भी कष्ट महसूस करने नहीं देना है, उनका ऐसा नेचर था। तो उसने सोचा, ये तो फल लाया है, लेकिन मैं ये क्या करूं? फिर मेरा पूरा शरीर बिगड़ जाएगा, बच्चे पैदा करेंगे तो मेरे को ये नहीं करना है। उनकी एक बहन थी, तो उनको दे दिया फल ले जाके। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनको ले जाके दिया कि ये फल खाओ, तो वो कुछ मना नहीं कर पाई।
फिर उसने जाके बाहर एक गौ माता थी उनके घर में ही, तो गौ को दे दिया। तो गौ माता ने वो फल खाया। तो थोड़े समय के बाद फिर देखा तो उनके बहन की भी बच्चा पैदा हुआ, और जो गाय थी उनके भी बछड़ा पैदा हुआ। तो बहन की जो मतलब इनके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट था, आपके जो बच्चा पैदा होंगे आप मेरे को दे देंगे, क्योंकि मैं आपको फल दे दिया। लेकिन उसने नहीं खाया, लेकिन बच्चे को तो ले लिया। तो बच्चे का नाम रखा कि धुंधकारी। ओके, बच्चे का नाम है धुंधकारी। और वो जो बच्चा पैदा हुआ, वो बछड़ा पैदा हुआ गौ माता का, वो देखने में तो गौ ही था, लेकिन उनके कर्ण जो थे, वो बच्चा पैदा हुआ, उनका बछड़ा ने बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चे का कर्ण जो था वो गौ का जैसे, इसलिए उनको नाम रखा गौकर्ण। समझ में आया? ये यहाँ पर धुंधकारी और वहाँ पर एक छोटू, लेकिन उसका जो कान है गौ जैसे, गौकर्ण। तो दोनों बच्चे आए घर में, लेकिन धुंधकारी जो है सेम धुंधली जैसे ही। ये इतना पॉजिटिव उनके पिताजी, लेकिन वो छोटू तो बहुत हर जगह पर पूरा राज्य में नेगेटिव है। तो ये देख देख के बहुत परेशान हो रहे थे। और दूसरे तरफ गोकर्ण जो था बहुत अच्छा बच्चा, बहुत शांत, बहुत पिताजी को मदद करने वाला। तो उन्होंने बोला, पिताजी आप इधर से चले जाओ, आप देख नहीं पाएंगे ये क्या कर रहा है, आप नहीं देख पाएंगे, आप चले जाओ इधर से। और वो तपस्या के लिए चले गए, जंगलों में चले गए उनके पिताजी आत्मदेव। तो ऐसे ही चला। थोड़ा समय के बाद देखे तो धुंधकारी इतना ज़्यादा करने लगा कि राजा के पास जो था उसके लिए भी चोरी करने के लिए और कुछ नेगेटिव काम करने के लिए गया, और घर में ही 5 वेश्याओं को ले आके रखा, और व्यवहार ठीक नहीं था सभी के साथ में, पूरे मोहल्ले वाले भी उनको कोसने लगे। ये सब हो गया। थोड़ा समय के बाद वो मर गया। कौन? धुंधकारी मर गया। फिर उनके पिताजी थोड़े समय के बाद आए उस मीन्स वो गांव में, लेकिन उनका घर तो पूरा बिगड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं है। उनके माताजी भी धुंधली भी शरीर छोड़ दिए, कोई है ही नहीं है, और सब उनके ऊपर नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया मेरे एब्सेंस में। फिर आके गोकर्ण को पूछा क्या हुआ, तो गोकर्ण ने बताया पूरा स्टोरी क्या क्या हुआ उनके एब्सेंस में। फिर उसी टाइम पर गोकर्ण भी योग मुद्रा में बैठे थे, तो उनको कहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था, आकाशवाणी। तो जिस तरफ से सुनाई दे रहा है उस तरफ जाके पूछा कि अब कौन बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ धुंधकारी जो था वो शरीर छोड़ दिया, तो प्रेत योनि में चला गया। मतलब प्रेत योनि माना तामसिक गुण, आत्मा के अंदर जो तमस है, नेगेटिविटी है, उससे भरा हुआ, तो ज़रूर दूसरों को दुखी पहुंचाएंगे वो, क्योंकि आत्मा में वही संस्कार है, वही ऐसे तमस में है, नेगेटिविटी में है, अंधकार में है। तो फिर वो बोल रहा है गोकर्ण को, भाई मुझे बचाओ, मुझे मुक्त कर लो, मुझे विमुक्त करो इस चीज़ से। तो वो सुन के हैरान हो गया गोकर्ण, तो क्या हुआ, क्या हो गया ये सब। फिर उनके पिताजी भी आए तो पूरा बताया। फिर उनको लगा, उनको आकाशवाणी सुनाई दिया गोकर्ण को कि आपके घर में भगवद गीता का सप्ताह रखो, 7 डेज, मालूम है ना सप्ताह रखते हैं, तो सप्ताह रखो, इससे उनको प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तो ऐसे ही किया, 7 दिन सप्ताह रखा, फिर वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई करके कहानी है। लेकिन एक एक दिन जब सप्ताह चला, एक एक दिन चल रहा था, तो ऐसे लग रहा था उनका श्राप से मुक्ति हो गई, प्रेत योनि से मुक्ति हो गई है। आत्मा बहुत मतलब रिलैक्स हो गई ये चीज़ों से,
ऐसे कहानी सुनाते हैं। तो अभी ये कहानी में देखेंगे हम किसकी कहानी है ये। आत्मदेव कौन है? तो वास्तव में देखा जाए इसका भावार्थ या शब्दार्थ देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है रादर देन द स्टोरी इटसेल्फ। तो आत्मदेव कौन है? हाँ, इस दुनिया में हर एक आत्मा है। अभी भी आप जो योग किया तो वही बातें बताई गई है आपको कि आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो आत्मा जो है बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा है ओरिजिनली देखा जाए तो। लेकिन इसका संग किसके साथ हुआ? कौन है उनके पत्नी? धुंधली। धुंधली माना क्या? धुंधली माना कंफ्यूजन, धुंधली माना अभिमान, धुंधली माना जो बताया ना मैं, ब्यूटी कॉन्शियस या फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस, जो एक अहंकार का, जो अभिमान का रूप लिया है वो है धुंधली। तो आत्मा जब शरीर के साथ निवास करने लगती है, आत्मदेव धुंधली मतलब शरीर, दोनों का जब निवास करने लगते हैं तो क्या होगा? बच्चे नहीं है लेकिन जो पैदा हुआ वो धुंधकारी। मतलब क्या रिजल्ट मिला? वही सेम कन्फ्यूजन, वही सेम बॉडी कॉन्शियसनेस, वही अभिमान, अहंकार, यही मिला। क्योंकि किसका डोमिनेशन चल रहा था? धुंधली का ही चल रहा है, आत्मदेव का कुछ है ही नहीं है। तो उनके ही प्रभाव में है तो वो रिजल्ट भी धुंधकारी वही है, वही अभिमान या अहंकार का जो कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, देह अभिमान, तो यही मिला। तो फिर उनका जो है धुंधकारी ऐसा हो गया, बच्चा वो पूरा कहानी सुना, फिर वो जाके क्या किया? बहुत नेगेटिव काम ही किया। लास्ट में जाके 5 वेश्याओं को घर में लाके रखा। 5 वेश्या है कौन? पंच विकार। 5 इंद्रिया तो अच्छे ही हैं लेकिन चलाने वाला ठीक नहीं है तो 5 इंद्रिय ऐसे ही चलेंगे। आत्मा ठीक नहीं है ना, इसीलिए धुंधली है ये 5 इंद्रिय जो है धुंधली है। वो आत्मा को ठीक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो वही चला। तो 5 विकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके साथ जब संपर्क चला तो क्या हुआ? उनका ही पतन हो गया। ये वेश्याएं उनको समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। तो आत्मा जो है 5 विकारों के साथ जब संग करती है, उनके साथ रहना शुरू करती है, काम विकार, क्रोध का विकार है, लोभ भी विकार है, मोह भी है, अहंकार भी है, जब इसके साथ रहना शुरू करती है तो आत्मा का पतन ही हो गया। देखो, आत्मा का पतन ही हो गया, इसीलिए उसको खत्म ही कर दिया ये 5 लोग मिलके। मतलब धुंधकारी उसी में देह भान में रहते, 5 विकारों में ही रहते, पूरा शरीर छोड़ दिया। राइट? हाँ, तब जाके उनको कौन मुक्त किया? गोकर्ण। गौ माता को बहुत हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो गौ माता माना कर्ण उनका जो था वो है गौ जैसा, गोकर्ण का। तो गोकर्णेश्वर, ये तुंगभद्रा नदी के मीन्स बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इट ऑल हैपेंड, जो कर्नाटक में है। गोकर्णेश्वर, गोकर्ण धाम आप सुना होगा, वो भी कर्नाटक में है। तो वहाँ पर की कहानी है ये पूरा। तो गोकर्णेश्वर शब्द परमात्मा को वहाँ पर नाम दिया है गोकर्णेश्वर। और ये बच्चा भी गोकर्ण, जिनका कर्ण गौ जैसा है। तो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, जब असली ज्ञान देते हैं, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, आत्मा भान में रहो, देह का अभिमान छोड़ो और 5 विकारों का संन्यास करो, ये सब ज्ञान है। तो कौन इनको मुक्त किया? जो ज्ञान गोकर्णेश्वर से सुना, गोकर्ण ने जब सप्ताह किया,
भगवद गीता का सप्ताह। भगवद गीता में क्या ज्ञान है ऐसा? पहला ज्ञान ये है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, आप परमात्मा के संतान हो। आपका कर्म कैसा होना चाहिए, आपका समय, अभी समय क्या चल रहा है, योग माना क्या है, ये सब चीज़ें आपको जो 1 वीक मेडिटेशन कोर्स जो कहते हैं, वो कौन सा कम है सप्ताह से? वही भगवद गीता का सप्ताह जो यहाँ पर ज्ञान सिखाया जाता है, जो गीता का सार। उसमें आत्मा का भी ज्ञान मिला, परमात्मा का भी ज्ञान मिला, समय का भी ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला, मुझे क्या करना है पर्पस भी मिला। ये सब बातें एक एक सुनते 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 जैसे कपाट खुल गया। जो अंधकार में थी आत्मा, उससे मुक्त हो गई, आत्मा को लिबरेशन मिला। राइट? और ये भी कहते हैं कि वो घर में एक लकड़ी रखे थे जिसमें 7 गांठ थे उसमें। जैसे आप शुगर केन को देखते हैं तो कैसे है, हाँ, बैम्बू को या शुगर केन को गांठ है बीच बीच में। तो एक एक दिन एक एक गांठ को तोड़ते गए। फिर 7 दिन के बाद सप्ताह खत्म हुआ, तब तक सब कुछ खत्म। मतलब आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई। ये किसकी कहानी है? परमात्मा का ज्ञान हम जब लेते हैं 7 दिन का कोर्स, तब आत्मा के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें मुझे नहीं करना है, वो जब ज्ञात होने लगा तो आत्मा को एक शक्ति मिली, आत्मा को नेगेटिविटी से एक छुटकारा मिले। इसलिए गांठ तोड़ दिए। इसी का वर्णन जब शरीर छोड़ते हैं, किसी का आप अग्नि संस्कार करते हैं, हाँ, किसी किसी के कल्चर्स में है कि हाँ तोड़ के फेंक के आते हैं। मतलब ये शरीर जो है मिट्टी से बना है, जो संबंध था अभी मिट्टी से मिट्टी का वो गया, सिर्फ आत्मा का संबंध रह गया है। मतलब बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो मालूम नहीं है। तो आत्मा मुक्त हो गई सप्ताह करने से। कितने लोगों ने किया सप्ताह यहाँ पर 7 दिन का कोर्स? बाकी लोग कब करना है? हाँ, करना है या नहीं? करना है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो नेगेटिविटी है या जो वो पकड़ के रखी हूँ नेगेटिविटीज़ को, जैसे कपाट खुल गया, आत्मा को शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलती है, तो आत्मा को ये बातों से मुक्त हो गए। तो हर एक आत्मदेव ही है, हर एक धुंधली के साथ संपर्क में आए हैं और उनके बच्चा हर एक के पास धुंधकारी है और धुंधकारी नाश करने के लिए देख रहा है आपको। हाँ, लेकिन मुझे नहीं होना है ऐसा, तो उसके लिए परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, वो जीवन में अमल करना है। वो समय है ये जिसको यहाँ पर परमात्मा कहते हैं संगम युग। मतलब समय ऐसा है कि शाम का समय या सवेरे का समय, जो रात भी नहीं है दिन भी नहीं है, ऐसे समय चल रहा है पूरे सृष्टि के, अभी पूरे कल्प के जो समय है, ये अपने आप की उन्नति का समय है। जैसे ये समय ही पितृपक्ष चल रहा है पूरा अपने लिए करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, ये सोचना है। मतलब 4 चीज़ें करते हैं हर एक। एक है तर्पण करना, है ना,
हाँ, हर महीना करते ही है, हाँ, लेकिन स्पेशली तर्पण भी करते हैं, अर्पण भी करते हैं, है ना। और तीसरी चीज़ भोजन खिलाते हैं, तेलुगु में बोलते हैं संतर्पण, अर्पण तर्पण संतर्पण। और चौथी चीज़ है दान। ये 4 चीज़ों की बहुत महत्व है। तो अभी जो मेरे पूर्वज हैं, जिनके भी ऋण मैं चुकाना चाहती हूँ, ये समय है उनके लिए मैं देऊँ। लेकिन परमात्मा उससे ज़्यादा ये कहते हैं कि आप मन से जो उनके लिए बातें पकड़ के रखी है, एक तो उसको छोड़ो। तर्पण तो किया, अर्पण तो किया, लेकिन ये बातें तो पकड़ के ही रखी हूँ। मेरे पिताजी उनको ज़्यादा दिया, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दिया, मेरे को कम दिया। ये कौन से तर्पण अर्पण करने से जाएगा? करते हैं या नहीं? ऐसे सोचते हैं या नहीं? हाँ, तो ये सोच चलने से फिर ये भी कहते हैं कि वो आत्मा जहाँ भी जाए, वो शरीर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरा जो संकल्प है उनको खींचता है। छोटे बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा खींचता है। आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, सोए हैं, नींद से सडनली उठ गए, कुछ हुआ ही नहीं है लेकिन उठ गए। कभी नींद में ही है, बहुत हंसमुख है, खुशी में बहुत हर्षित है, चेहरा भी हर्षित है और हंस रहे हैं। आपको पता नहीं कि क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। क्यों करते होंगे ऐसे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे सो गए लेकिन ऐसे। ये कहा जाता है कि आत्मा का जो पहला कनेक्शन है पूर्व जन्म का, वो आत्माएं जो भी बात करेंगे, ये आत्मा इतना इनोसेंट प्योर फॉर्म में है, मतलब इट्स वेरी मच इनोसेंट, मतलब उनका वाइब्रेशंस जो है इतना प्योर है, इतना क्लीन है उस समय कि दूसरी बातें नहीं है, तो वो आत्मा वहाँ की चीज़ों से, वहाँ की बातों को देख सकती है, सुन सकती है, कनेक्ट कर सकती है। तो वहाँ पर आप कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनके लिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आत्मा, ये शरीर में छोटा बेबी, बोलने के लिए कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ फीलिंग से मालूम पड़ रहा है कि वो लोग मेरे लिए नेगेटिव गलत बात कर रहे हैं, तो रो रही है यहाँ पर। अब जब अच्छे बातें करते हैं उनके लिए, इधर खुश हो रही है बेबी। हम बहुत खुश होते हैं, मेरा बेबी तो सोए सोए भी बहुत खुशी में है, लेकिन ये कनेक्शन है। तो जो भी मैं कर रही हूँ वो कनेक्शन है, आत्मा के साथ कनेक्शन। तो मैं जो कर रही हूँ अभी मैं समझती हूँ मेरे पूर्वजों के लिए कर रही हूँ। मैं भी किसी के पूर्वज हूँ ना। दूसरा सोचने की बात देखो, मैं मेरे पूर्वजों के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी किसी की पूर्वज हूँ, हाँ या ना? कभी ये एंगल से तो हम देखते ही नहीं है। हम अपने पूर्वजों को कर रहे हैं, हमारे लिए भी वो लोग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भी हम इस समय स्पेशली सतगुरुवार का दिन जो है भगवान को भोग लगाते हैं, तो सभी को प्रसाद तो वैसे गुरुवार को देते ही हैं, लेकिन इस समय खास हम कहते हैं कि मर्जीवा का भोग लगाओ। ये शब्द कहीं नहीं सुना होगा आप। मरना मालूम है, जीना मालूम है, लेकिन ये मर्जीवा परमात्मा का शब्द ही कुछ अलग है। मर्जीवा माना इस जीवन में भले रहो, लेकिन पुरानी बातों से मर जाओ। हो सकता है ऐसे? ये जन्म ऐसा होना चाहिए, बातों से, नेगेटिविटी से, उससे मर जाओ। भले इस जीवन में, इसी शरीर में, इसी नाम से, इसी प्रोफेशन में, इसी परिवार के साथ भले रहो, लेकिन बातों से, नेगेटिविटी से, विकारों से, पुरानी चीज़ों से मर जाओ। ये मर जीवा। तो परमात्मा हमको सिखाते हैं कि हर एक को भोग लगवाना इस समय, सतगुरुवार के दिन, या इस समय तो हम सोचे कि अपना बड़ी दीदी नहीं है अभी, तो वो
कुछ टूर में गए हैं, तो 2 गुरुवार को भी हम लगा रहे हैं। फिर लास्ट डे जो है अमावस्या के दिन, उस दिन भी भोग लगाते हैं, संडे को, लास्ट 21 को। तो उसमें ज़रूर हर एक का लगना चाहिए करके कहते हैं हम। हमारे भाई बहनें जो रोज़ क्लास में आते हैं उनका तो हर एक का लगना ही चाहिए। मतलब मेरे लिए जो कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, मैं अपने पूर्वजों के लिए कर रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो पैसा दे के किसी का चुकाना नहीं होता है। किसी का कर्म चुका सकते हैं क्या पैसा दे के? नहीं चुका सकते। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि सिर्फ अर्पण तर्पण करने से नहीं, लेकिन उनके जीवन में जो उन्होंने अमल किया है वो आपके जीवन में आप अमल करो। ये असली श्रद्धांजलि उनके लिए। मेरे पूर्वज ऐसे थे नहीं, मैं भी ऐसी बनूं अच्छी चीज़ों में। तो असली श्रद्धांजलि, असली भावांजलि उनके लिए। और श्राद्ध जब खिलाते हैं तो हर एक को खिलाते हैं। किस किस को खिलाते हैं? कौवे को, गाय को, कुत्ते को, ब्राह्मण को। हाँ, परिवार वाले तो है ही है। और एक है, हाँ वो तो कौवे के लिए, कहाँ भी लगा हो छत के ऊपर। आजकल कहाँ भी नहीं आते, इसीलिए छत के ऊपर ले जाते हैं। एक्चुअली कौवे के लिए छत पे ऊपर ले जाते हैं। और एक है चींटियों को खिलाते हैं। हाँ, ये सब लोगों को। तो ये भी देखेंगे क्यों खिलाना है इन लोगों को। हाँ, तो कहते हैं गाय को तो इसलिए खिलाते हैं कि उनमें जो देव ऋण मैंने बताया, हाँ, जो गौ माता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो एक गौ माता को खिलाए तो सभी देवताओं का ऋण चुका दिया। ये एक मान्यता है, इसलिए गौ माता को खिला रहे हैं। फिर कहते हैं कौवे को खिलाया। क्यों खिलाना? अगर कौवा नहीं आया किसी का श्राद्ध में तो कहते हैं उनको मुक्ति नहीं मिले, है ना। हाँ, कभी भी नहीं खिलाते, लेकिन उस दिन तो खिलाते ही हैं। और कौवे आने तक उधर ही बैठे रहते हैं। भाई साहब बोले छत पर बैठते हैं, छत पर बैठ के उनको बुलाते ही रहते हैं। अगर नहीं आया तो ठीक बात नहीं है कहते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो खिलाया उनको। क्यों खिलाया? हाँ, कैसे मिला उनके द्वारा? तो उसके लिए भी एक कहानी सुनाते हैं आज। वैसे कहानियों के द्वारा हम सीखने के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति था, मैं नाम भूल गई अभी, जयंत। तो उन्होंने सीता जी को मोह किया, मतलब उनके ऊपर बुरी नज़र रखा। तो ये जो है अच्छा नहीं लगा राम जी को। तो राम जी ने उनको बाण से मारा। तो वो आत्मा जाके वहाँ पर कौवा थे, तो कौवे के आँख में घुस गए। वो ब्राह्मण था एक्चुअली। तो राम जी ने सोचा, एक तो हमको मालूम है कि जो रावण के हत्या करने के बाद ब्राह्मण हत्या का पाप परिहार करने के लिए बहुत किया राम जी ने। फिर इनका भी कुछ हत्या किया, तो बहुत कुछ सोचा कि मैंने क्यों ऐसे किया। तो उनके हत्या किया तो वो भी रियलाइज़ किया, मैंने जो नज़र रखी बहुत गलत नज़र रखी सीता के ऊपर, सीता माँ के ऊपर, तो मुझे ऐसे नहीं करना था। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे को श्राप मुक्त करो, मैं इधर आके अटक गया हूँ, मैं क्या करूँ। फिर उनको कुछ उपाय बताया, वो तो श्राप मुक्त हो गया। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कौवे को नहीं खिलाया, कौवे को नहीं देखा, कौवा नहीं खाया, तो उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी करके आपके नाम से ये वर मिला, आपको नाम ये वर मिला कि ये कौवे को इतना बड़ी उपाधि मिल गई कि उनको खिलाना है।
फिर इसी के कंटिन्यूएशन में फिर कहते हैं उसी जन्म में फिर उनका ऋण चुकाने के लिए वो जटायु के रूप में गया और सीता जी को बचाया ना। खुद मर गया, लेकिन सीता जी को बचाने के लिए ये उनके जो रास्ता है वो राम जी को इसने ही बताया, जटायु ने, राइट। तो मतलब ये जो है हमको बचाएगा करके एक मान्यता है, इसीलिए भी कौवे को खिलाते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कुत्ते को खिलाते हैं, मतलब विश्वास पात्र है। इसलिए जो पांडव भी है उनके साथ जब वो पूरा युद्ध पूरा हो गई, महाभारत की लड़ाई पूरा हो गई, जब वो जा रहे थे उस समय वो पांचों के साथ एक कुत्ते को भी लेके गए और कहते हैं ऊपर चढ़ते 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 एक एक अपना जीवन परित्याग किया, लेकिन धर्मराज जब तक थे तब तक वो कुत्ता भी था और कुत्ता भी अपना शरीर छोड़ा ऊपर जाने के बाद धर्मराज के साथ। मतलब ये विश्वास पात्र है, उसके प्रति कुत्ते को भी खिलाओ, वो बचाएगा कभी भी आपको कहीं भी किसी भी बात से। मतलब ऋण चुकाने की बातें ये सब, हर एक का ऋण चुकाओ, किसी के साथ मत रखो। चींटी को खिलाना इतनी छोटी चीज़ है, मतलब किसी के साथ कुछ लेन देन किया या कुछ बोल किया या कुछ कर्म किया, उसका भी आप ऋण चुका के आत्मा को मुक्त कर दो। इतना इनसिग्निफिकेंट छोटी छोटी चीज़ें, हमको मालूम ही नहीं है कहाँ पर मैं अटक गई हूँ, किस बातों से, किस पैसों से। मतलब किसी का ऋण मत रखो, हर एक का चुकाओ। तो उस हिसाब से भी उनको भी खिलाया। फिर जाके ब्राह्मण को खिलाते हैं, और वो भी कहा गया है कि द्विज को खिलाना। द्विज माना जिसका दूसरा जन्म हो, वो ब्राह्मण जिसका दूसरा जन्म हो। दूसरा जन्म माना ये नहीं कि ये शरीर छोड़ दिया दूसरे जन्म में जाके हम ब्राह्मण बने उनको खिलाओ, लेकिन शास्त्रों में ये है द्विज माना जिसका कॉन्शियसनेस इस जीवन से नहीं है, सात्विकता से होती है, या ब्राह्मणत्व से जिसका कॉन्शियसनेस बनता है, वो द्विज है। मतलब हम इसी शरीर में है, कोई भी जाति कहाँ के भी हो, लेकिन जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, वो अगर मैं परिवर्तन करूँ, वो सात्विकता में लेके आओ, वो पॉजिटिविटी में लेके आओ, ब्राह्मणत्व अपनाओ उसमें, देन आप द्विज हैं। यहाँ पर हमको भी ले आके देते हैं, दीदी आप जैसे ब्राह्मण और कोई तो नहीं है जीवन में, बाहर भी ढूंढते हैं तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे आके ले आके अपनी माता ये भी देते रहते हैं, कोई भाई भी लेके आके देते हैं। लेकिन हम तो मतलब खैर कपड़े भी, कोई कल परसों मेरे को कपड़े भी ले आके दिए बाबा के घर में, हम आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं करके, वो तो बाबा के घर में ही रखते हैं हम। मतलब ये है कि द्विज जो दूसरे जन्म लिए हैं, मतलब अपने कॉन्शियसनेस से, पुरानी बातों से दूर होके जो सेकंड जन्म लिया है, वो एक्चुअली द्विज है। तो उनको खिलाने से वो आत्मा को प्राप्ति हो रही है, कह रहे हैं। तो ये सब जो भी हम कर रहे हैं, भले कहानियाँ हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख के हम उनके लिए श्रद्धांजलि, भावांजलि, दिव्यांजलि जो भी देवे, लेकिन उनके जो गुण कर्तव्य है मुझे अपनाना है। जो उनके प्रति मेरे संकल्पों में भी नेगेटिविटी है, उनको रिलीव करना। जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक वो आत्मा सफ़र हो रही है। तो जैसे लिबरेट करना है, मुक्त करना है। कहीं कोई गलती कर लिया उन्होंने, मेरे प्रति कुछ नेगेटिव हुआ है जाने अनजाने में, तो आज ऐसा हम मेडिटेशन करें और रोज़, और एक हफ्ता है, रोज़ सवेरे उठने के बाद हम उनको मुक्त कर देवे अपने संकल्पों के द्वारा,
हम उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना के संकल्प करें, पॉजिटिव संकल्प करें। और हम भी किसी के पूर्वज हैं तो हम भी कुछ नेगेटिव करके आए होंगे, तो वो हम भी पकड़ के रखा है ना। हम भी किसी के पकड़ के रखे हैं, लेकिन इस जन्म में है तो मालूम नहीं है, डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बैगेज है अंदर, कुछ हैवीनेस कैरी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी कैरी कर रही हूँ, तो उसको भी हम आज रिलीव कर देवे, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊँ। तो हम उनको भी मुक्त करें, अपने पूर्वजों को, और हम भी मुक्त होवे, दोनों करना है। तब देखना आप कितना लाइट फील करेंगे। जो दोष वोष बोल रहे हैं ना, हाँ, उनका जो पितृ विमोचन, हाँ, उनका जो दोष विमोचन करने के लिए, वो सब करने से पहले इधर से रिलैक्स हो जाओ, इधर से उनको मुक्ति दे दो, आप भी मुक्त हो जाओ उन बातों से, तब देखना सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक है, तो करेंगे ऐसे, पितृपक्ष मनाएंगे, हाँ, महालया पक्ष, हाँ। तो ये एक हफ्ता आप ये एक स्पेशल एक आपके लिए एक होमवर्क लेना कि रोज़ सवेरे उठते ही मैं किसी बोझ से नहीं उठ रही हूँ, कोई हैवीनेस नहीं है मेरे अंदर, जो भी अभी तक सोच चला है इनके कारण इस कारण, नहीं, कोई भी कारण नहीं, मैं सब बोझ से मुक्त। और मैं भी मेरे साथ जो भी कनेक्टेड है उन लोगों को भी मुक्त कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा के साथ कनेक्शन है। करेंगे ऐसे, चले थोड़ा समय योग करें, हाँ, ये स्पेशल मुक्त होने का। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में, अपने आप को देखे भ्रुकुटी के बीच में एक छोटा सा सितारा, बहुत लाइट है, प्रकाशमय भी है, और साथ ही साथ बहुत हल्का, जिसमें कोई भी प्रकार की भार नहीं है। अपने नाम से, अपने जो प्रोफेशन है, जो आपका रोल है, आपके जो जिम्मेवारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब बातों से मुक्त होकर, हल्के होकर, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सामने एक प्रकाशमय ज्योति को देखो। अति पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली परमात्मा
उनसे शांति की किरणें प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं और मैं आत्मा मेरे अंदर जो हैवीनेस है या किसी भी चीज़ की जो नेगेटिविटी है वो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ परमात्मा के शक्ति के सामने, प्रकाश के सामने मैं अपने आप को इस सब बोझ से मुक्त करना चाहती हूँ। मैं आत्मा उन पूर्वजों को मैं मेरे सामने इमर्ज करती हूँ जो मेरे पितृ पूर्वज थे। मेरे सामने वो भी आत्मिक रूप में है और मैं परमात्मा के सान्निध्य में मेरे मन से उनके प्रति जो भी गलत भावनाएं, जो भी बातें पकड़ के रखी हूँ वो सबसे मुक्त कर रही हूँ। आप जो भी है, जैसे भी है, अच्छे ही है। आप मेरे लिए जो भी किया है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप आपके आगे की यात्रा के लिए बहुत निश्चिंत होकर जावे और मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ। परमात्मा की शक्ति गाइडेंस मुझे चलाएंगे और शुभ भावना से उन आत्माओं को हम विदाई देवे और मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से अपने आप को बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा और कुछ आत्माओं को देख रही हूँ जिनसे मेरा पिछले जन्म का संबंध है। उन आत्माओं से भी मेरा जो संपर्क रहा जाने अनजाने में, मैं कुछ भी किया है उनके लिए, मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे आत्मा को आप आपके मन से, दिल से मुक्त कर दो और मैं आगे के जीवन में, आगे की मेरी यात्रा से आप दूर हो जाओ। आपकी जो भी भावनाएं हैं वो मैं स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन मैं आपके लिए बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, तो मैं आत्मा उन बातों से भी मुक्त होकर अपने आप को
बहुत हल्का, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। कुछ पलों के लिए अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में देखिए और परमात्मा की जो छत्र छाया है, उनके जो प्रकंपन है, किरणें है, उसके अंदर आत्मा बहुत सुरक्षित है। उसी फीलिंग में कुछ क्षणों के लिए अपने आप को रखेंगे। मैं परमात्मा के छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। ये कितना सुखद अनुभव है। आत्मा लाइट फील कर रही है। और इसी लाइटनेस से मैं हर कर्म, हर संकल्प और बोल करूँगी। इससे मेरा हिसाब किताब ना बने, ऐसे कर्म, ऐसे संकल्प बोल रखेंगे। यही दृढ़ संकल्प लेकर अपनी जीवन यात्रा को आगे ले जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। शांति। कर पाए? जो बताया वो कर पाए? देखा? उनको भी मुक्त करते, आप भी बातों से मुक्त होते हुए देखा अपने आप को? थोड़ा सा किया। तो ये पूरा हफ्ता जो है नेक्स्ट संडे तक, ये हर रोज़ अभ्यास करना और आप अपने आप को लाइट महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे। ठीक है? तो सिर्फ यही नहीं मनाओ, लेकिन अर्थ सहित मनाओ, अपने लिए मनाओ। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। आज हमें बहुत क्लैरिटी से दीदी ने बताया कि हम वैसे भी अपने लिए ही करते हैं, लेकिन अभी ये अपने को धोखा नहीं देंगे, बल्कि उस सही इंटेंट और सही भाव से उन सभी रिचुअल्स को, उन सभी भावनाओं को अपने पितरों प्रति भी और मुक्ति के प्रति हम रखेंगे। तो दीदी का इस यथार्थ पितृपक्ष मनाने की प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो थैंक यू दीदी। तो इसी प्रकार वी विल हैव अनदर Sunday evening talk next Sunday, and it will be a special session. So we have on Saturday a half-day retreat for all technology professionals, and the Sunday talk will be taken by the same speaker, who is Sister Monica Gupta, who is coming from Delhi. She is a great example of how to balance a spiritual life and a professional life. An entrepreneur by profession, she owns her company, is greatly successful in the digital marketing media and her own company. She's been awarded different accolades for her work in her profession, and is also leading a spiritual life for the many decades that she's been associated with Brahma Kumaris.
So it would be a great opportunity to learn from someone who has seen both sides of the table. So we will meet next Sunday, and those who are in technology professionals, IT and other IT enabled services, they are welcome to register for the IT retreat. It will happen in inner space within the Shanti Sarovar campus. More details you can receive from the reception from the volunteers. And today's prasad would be distributed at the ground floor reception, since it's raining heavily and we don't have much sitting space in this first floor. So please do take prasad before you leave. Thank you so much. Have a good night and a great week ahead. Along with the meditation that Didi taught us today, I think we can make it even more better and experience the freedom from the past debts and past burdens. Om Shanti. Good night.